ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਤ ਦੇਹ ਅਨਿਤਾ। ਤਿਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨੋ ਸੋਚਿਤਾ। ਤਾਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਮ ਨਾਮ। ਜਪ ਹੈਵ ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਧਮ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਧਕਾਰ ਵਤ ਦੇਹ ਅਨਿਤਾ। ਤਿਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨੋ ਸੋਚਿਤਾ। ਕਵਿਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੱਜਣ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਸਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਗੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਹਾਹਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਰਾਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਮ ਨਾਮੰ। ਜਪ ਹੈਵ ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਧਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ। ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਬੁਝੇ ਪੁਨ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਵੇਂ। ਕਿਸ ਬਿਤ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਜਣ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੜਿਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਤੇ। ਡਗ ਡਗ ਅਸਵ ਮਖ ਹੈ ਫਲ ਤਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਡਗ ਡਗ ਅਸਵ ਮਖ ਹੈਵ ਫਲ ਤਾਮ ਤੇ। ਡਗ ਡਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਮੇਤ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2-4 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 5-7 ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਧਨ ਕਾਰਣ ਜਤਨ ਜੋ ਕਰ ਹੈ ਲੋਕ ਅਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕੋ ਮਾਨਵ ਦੇਹ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਹੀਐ। ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਦੇਹ ਧਨ ਆਈ, ਜਨ ਤੇ ਜਾਚੇ ਆਪਣ ਭਲਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਤੇ ਜਾਚੇ ਆਪਣ ਭਲਾਈ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਬਚਨ ਕਰਿਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਕਾ ਕਹੇ ਤਰਕਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਭਗਤਨ ਜੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ, ਹੋਏ ਹੈ ਗਿਆਨ ਜਾਏ ਤਮ ਟਰਕੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦਗਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੈ ਸ਼ੋਰੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਣਾ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜੈਸਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ।
क्योंकि जिंदे कोलों मंगना है जो कोई आके उन्होंने ही मंग लवे। हुण देखो गल बड़ी सौखी जी समझण वास्ते, किसी राजे के कोलों कुछ मंगण जाना होवे कि सानू पिंड लई ग्रांट दे 2-4 लाख रुपया, छोटी जी गल है राजे वास्ते, वो राजा दे भी दवे। पर जे कोई राजे नूं कहे कि राजा जी मैं तो तुहानूं लैण आया, मेरे नाल ही चलो, तो फिर उस राजे तो कुछ मंगना पेगा जी। जेड़ा राजा ही घर में आ जाए ये तो संसारिक उदाहरण है, पर जेड़ा रब गुरु परमेश्वर ही नाल चले जाए कि सतगुर जी होर कोई शोभा नहीं चाहिए, कोई वडियाई नहीं चाहिए, कोई चार पदार्थ नहीं चाहिए, मैं तो तुहानूं लैण आया। और सतगुर जी कहते हैं सचमुच जे किसी ने नाम मंगया ने सारा कुछ नाम दे अधीन ही है। अर्थ वाहिगुरु समझण करके हुए है ज्ञान जाए तम टरकै। कहते भाई सिंह भाई गज्जन जी इन्होंने वाहिगुरु के शब्द के अर्थ समझे, अंदर ज्ञान होया, अंदर दे अज्ञानता का हनेरा तो कट्टिया गया। चतुर पदार्थ नाम अधीना सिमरन करो होए दुख सीना। सतगुरु जी ने समझाया भाई सिंह जी भाई गज्जन जी, 4 पदार्थ जिहड़े ने नाम के अधीन ही ने, ये नाम तो उत्ते नहीं, ये नाम के हुक्म दे विच चलदे ने। नाम जपो, 4 पदार्थ पिछे पिछे आउणगे, सिमरन करो दुख दूर होएगा। श्री गुरु को उपदेश सुन करन लगे सो कार। और गुरु के सिख सुनते भी सन फिर कमाउंदे भी सन। भाई सिंह भाई गज्जन ने सुनिया उस तरह कार कर लगे, कमाउण लगे। पिछले ने इशनान कार पढ़े शब्द हित धार। भाई सिंह भाई गज्जन गुरु साहब का हुक्म सुनने तो बाद पिछली रात जागते हैं। पिछली रात आप जी समझते हो साढ़े पिंडा विच वड्डा वेला भी कहा जाता सी, अमृत वेला भी कहा जाता है कि अमृत वेले उठ के इशनान करते हैं, गुरु के शब्द नूं पढ़ते हैं। उठते नाल जुबान तो सब तो पहला शब्द निकलता है वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु करते इशनान करते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, फिर शब्द की विचार करते हैं। दिन सगरो निज कृत कमावै अपज्ञात सो वंडे खावै। सारा दिन ये अपनी किरत करते हैं ते किरत करते गुरु नूं चेते विच रखते हैं। 10 नोहां की किरत करके फिर भोजन जिहड़ा है वो किरत करन तो बाद वंड के फिर छकते हैं। अंतर श्वास जे वाहे मिलावै निकसे वहर ता गुरु अलावे। इन्ना को अभ्यास हो गया भाई सिंह ते भाई गज्जन के काम करदे भी वाहिगुरु 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 जपी जाना। हुण इन्ना अभ्यास सी कि जे श्वास अंदर लैंदे सन ते वाह शब्द निकलता सी, श्वास जदों छड्डदे सन गुरु शब्द निकलता है। इहनूं कहंदे ने श्वास ग्रास जपना। ये श्वास लैंदियां भी वाह कहते हैं, छड्डण लगे गुरु कहते हैं। इस विधि अपनो समा बितावैं शुभ तिथ पंचामृत करवावैं। इस तरह ये अपना समा बतीत करते रहे। और जेड़े पर्व होंदे ने पर्वां वाले दिन किते संगत इकट्ठी होनी, इकट्ठ करना, किते आप कहते कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करके संगत बुलाउणी, संगत दे विच देग वंडनी। केत्यो समा बतीत्यो तिनको भले कर्म के रुच जन मन को। कहते इस तरह करदे भाई सिंह ते भाई गज्जन बहुत समा बीत्या, पर उन्हां दे अंदर दी जिहड़ी प्रीत सी ना वो दिनों दिन वधदी जांदी सी। भले कर्मां दे उन्हां दे अंदर चाहत जिहड़ी सी वो दिनों दिन होर वधदी ही। सिंह के एक सुता थे करन लग्यो तिस ब्याह। हुण भाई सिंह समा पिया, धी जवान सी, जेड़े विआह की तरीक वो मिथ ली गई। असन करायो अणक बिद निकट रहे दिन ताहे। हुण बरात आउणी है,
और पहले समय इसे तरह से कि कई दिन पहलों कढ़ाइयाँ रख लैनियाँ, बरात नेड़े दिन आ गए, बहुत सारे मिष्टान जिहड़े ने जिन्ने को उन्हां दी हैसियत से उस मुताबिक तैयार किए। मधुर सन घत कराए आहारा, राख्यो बहुत अगार मझारा। देसी घ्यो के मिठे पदार्थ तैयार करके घर दे विच रख दिते गए। सिख गुरु के दर्शन जाए, घर सेहें के उतरे आए। कहते उधरों गुरु के सिख संगतां जिहड़ियां ने वो सतगुरु के दर्शनों वास्ते जा रही ने करतारपुर साहब। पर रस्ते दे विच किहड़े जिहड़े पिंड वाले ने कई बार जान बुझ के भी जानते हैं कि बहुत इन्हां दे कोल जिहड़ा रुपया पैसा खुला कोई नहीं, पदार्थ जिहड़े बनाए ने बरात वास्ते पूरे बनते सन। आम घरां विच इवें हुंदा सी। और किसी ने जान बुझ के भी कहा संगत नूं कि भाई जाते जाते भाई सिंह के घर जरूर रोके जाए, क्योंकि पता से भाई सिंह घर आए नूं प्रशादा छकाए तो बिना कदे नहीं तोरदा। संगत ज़्यादा है, भाई सिंह के घर विच आ गई। हित बरात के जो पकवाने, सिंह दिन सो तिन खाने। हुण जिहड़े पकवान बरात वास्ते तैयार करके रखे सन, जदों संगत घर विच आई, घर वाली ने पूछा कि हुण संगतां नूं छकाउणा की है, एकदम इन्ना लंगर तैयार किवें होए। ते भाई सिंह कहंदा जिहड़ा बरात वास्ते तैयार करके रखा ना, बरात संगत नालों वड्डी नहीं हुंदी, ये छका दो, फिर बाकी फिर वेखी जाएगी। वो मिष्टान प्रसाद जो कुछ तैयार किया सी बरात वास्ते संगतां नूं छका दिता। संगत बहुत सदन मह जो, सब पकवान खाए गए सो। संगत ज़्यादा सी, जिन्ना को बरात वास्ते तैयार किया सी तकरीबन वो सारे छक गए, बरात वास्ते कुछ नहीं बचिया। अगले दिन मैं जंज ने हुतो आवणो धाम। हुण ये अज शाम की गल, संगत प्रसादा छक गई, अगले दिन सवेरे जंज आनी है। और अज वर्गे साधन नहीं सन कि रातों रात बड़ा कुछ तैयार हो जाए। और जिन्हां दा हथ चंगा खुला से वो कर भी सकते सन, पर आपां अपने वालों हिसाब लाइए जिहड़ा आम मातड़ बंदा है रातों रात की तैयार करे, क्योंकि जो कुछ पहलों तैयार किया हो सकता कई तो पहलों उधारा चुक के किया हो। सवेरे बरात आनी है, संगत बड़ पुनसार ते गवणे ले गुरु नाम। अगले दिन अमृत वेले गुरु की संगत ते गुरु का नाम लैके उतों रवाना हो गई। अमृत वेले सवेरे चाह पानी भी छकिया, कुछ बचा होया जिहड़ा सवेरे भी छकिया होना। चिंत करै सिंह के नार, तनकन केत न रहियो आहार। हुण सवेरे अमृत वेले भाई सिंह के घर वाली वो इस्त्री बड़ी चिंता दे विच ते कहंदे देखो जी घर विच तो कुछ नहीं बचिया। आवे अब बरात क्या खाही, तूरण तैयार होत कस नाही। कि बरात हुण आउण वाली है, बरात की खाएगी, बरात नूं की छकावांगे। और एडी छेती सारा कुछ तैयार भी नहीं होना। किस प्रकार लाज रह आवे, सगरे जगत निंद प्रगटावे। भाई सिंह दे नार जिहड़ी घर वाली है इस्त्री है, हाथ जोड़ के कहती है कि हुण कुछ करो, उदम करो कि साडे ते जिहड़ी इज्जत मिट्टी विच रुल जानी है। साडे नगर विच पिंड विच बदनामी जिहड़ी होनी वखरी, ते जिहड़े कुड़मां ने आउणा बरात लैके उस नगर विच पिंड विच बदनामी होनी वखरी। रिश्तेदार सारे बदनामी करनगे। पिख संचिंत सिंह निज नारे, ताको देन दिलासो भारे। भाई सिंह ने जदों अपने घर वाले नूं देखिया कि इन्नी चिंता विच है, तो भाई सिंह जिवें बिल्कुल किसी तरह की जिवें कोई फिक्र ही नहीं, मुस्कुराउंदिया होया घर वाली नूं हौसला दिंदे ने।
और देखो बड़ा वड्डा भरोसा होवे ते गल कही जा सकती है कि बरात आउणी, घर विच कुछ भी नहीं, ना कोई तैयारी है। ते हौसला दे के कहते ने सतगुरु आस धरो मन माही, अपर विचार करो को नाही, कि भागवान तू सतगुरु ते भरोसा रख, मेरे धन गुरु नानक साहब ते आस रख, बाकी की चिंता किसी तरह की नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। क्योंकि मेरे गुरु ने बाणी दे विच भावें बाद विच पावन बचन कहे भी ने, बचन भावें धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे ने कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। और इवें दा भरोसा जिहड़ा सी भाई सिंह दा सी, घरवाली नूं भी दिता, राखेंगे प्रभु पैज हमारे, दास जान है वो है हितकारी। भाई सिंह जी कहते हैं भागवान ने सतगुरु साडी पैज आपे रखणगे, अपने दासां दी लाज वो आप रखते हैं। अस विचार करते हो ते काला, पहुँचे आए बरात विसाला, इवें दे विचारा कर ही रहे सन। सूरज चढ़ गया, दिन चढ़ गया, उधरों जेडे बरात है ढोल ढमके वजने वो भी कन्नां विच सुनाई देने शुरू हो गए, बरात नेड़े आ गई। कर टुकाओ पल डेरा किनो, देख नार पे हरख बहिनो। हुण जंज का टुकाव भी हो गया, जंज का डेरा भी करा दिता। पर भाई सिंह दे घर वाले जिथे खुशी के नाल बरात नूं जी आया कहना सी, अंदर किसी तरह की कोई खुशी नहीं, सगों चिंता है। कहन लगे क्या देह खुआए, नर बरात में बहुते आए। भाई सिंह दे घर वाले कहते हुण दसो जी बरात नूं की छकाईए। जिन्ने को बंदियां दी आस सी बरात विच ते बंदे भी दुगने आ गए, बंदे भी खास आ गए ने। सिंह उठ कीनी अरदास, सतगुर चरण ध्यान कर तास। कहते तो भाई सिंह उठिया, घर वाले नूं नाल लिया, ते जेड़े कोठी दे विच जेड़े कमरे दे विच पकवान तैयार करके रखे सन, भावें संगत नूं छका दिते। दरवाजा नहीं खोलिया, पर दरवाजा खोलण तो पहलों धन गुरु नानक साहब के चरणों च अरदास की। देखो अरदास आप भी करने हैं, कराउने भी हैं कि गुरु का लंगर तैयार है। आप कहने ना सतगुरु जी तुहाडे दर ते प्रवान होवे, कह देने कि गुरु का लंगर, पर असल में कब्जा जदों तक वो खत्म नहीं होंदा उदों तक साडा अपना ही होंदा है कि ये जिन्हां ने छकना साडी मर्जी वाले बंदा अंदर आवे। पर भाई सिंह ने सचमुच अरदास की, और उस अरदास नूं गुरु साहब जी कहते हैं बिरथे कदे ना होवे जन की अरदास। और सवेरे भी पावन बचन आए सन, साडी अरदास केवल अखरां तक सीमित है। अखर असीं बड़े एक दूजे तो वध के बोल दिंदे हैं, और एक बारी नहीं 4-4 बारी बोल दिंदे हैं। पर अरदास पूरी होवे किवें, क्योंकि अंदर दी भावना बने ते ताए ना। अरदास ते बिरथी कदे हुंदी ही नहीं। भाई सिंह ने अरदास की, राखे सिखण पैज अगारे, चरण कमल हम शरण तुम्हारी। ते सीधे ज बोल सन, कोई लंबे चौड़ी अरदास नहीं की। भाई सिंह जी कहते सतगुरु जी तुसीं पहला भी अपने सिखां दी लाज रखते आए हो, ते सतगुरु जी असीं भी तुहाडी शरण विच तुहाडे सिख हां। अस कह तिस कोठे को तारा, खोल बलोक आहार अपारा। बस सिर्फ 2 शब्दों की अरदास सी। पैज तुसीं पहलों अपने सिखां दे रखते आए हो, असीं भी तुहाडे सिख हाँ। इस तो अगे कुछ नहीं कहा कि तुसीं लाज रखो, इत्थे कोई घाटा ना आवे, वाधा ना होवे, इवें ते कोई बोल ही नहीं कहे। ये 2 शब्द कह के कि असीं तुहाडे सिख हाँ। वो कोठी का ताला खोल दिता, ते अंदर वेख्या कि जेड़े भोजन जिवें पहलों तैयार सन, जिवें उस नालों वध के अंदर पए होण। वो बेअंत अपार जेड़े गुरु साहब ने पावन बचन भावें वो गुणा वास्ते वरते ने, धन गुरु अर्जन देव जी ने।
कि पीओ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निदाना। उनदे विच पावन वचन हुंदा ना, खावो खर्चो रल मिल पाई, तोट न आवे वध हो जाई। और फिर बेनती करदे उनका भावर्थ भावें वो गुणा करके है कि गुण जिन्ने मर्जी खाओ खर्चो कदे नहीं खत्म होंदे, पर जे भरोसा होवे गुरु ते सच जानो, फिर अरदास कीती होवे कि लंगर गुरु दा है, फिर वो लंगर भी कदे नहीं कटदा, टोट आउंदी नहीं। पांत बरात बिठाए कै भोजन भले खुआए। भाई सिंह जी कहते ने घर वाली नूं भागवान ने बिठाओ संगत विच। पंगतां विच बरात पहलों बैठदी सी, पंगतां च बिठाया, सेवादार लगे भोजन छकाया। अत सुंदर बहु स्वाद जेहे हरखत रहे अकाए। और बड़े सुंदर ते बड़े स्वादी भोजन जिन्ना खाधे बड़े प्रसन्न होए। पंच दिवस घर राखे सोए, तोट असन के होए न कोई। देखो एक समय भोजन छकाउण जोगा नहीं सी, पर बरात 5 दिन रही। 5 दिन भोजन की किसी भी तरह की कोई तोट नहीं आई। तो उत्थे कोई नवा हलवाई नहीं आया, कोई बाहरों होर कुछ खरीद के नहीं आंदा। बहु विध के पकवान जिमाए, खाए जनेते और हर खाए। ते पकवान भी इंज जिवें नित नवे होर दे होर बनते सन। ये जिन्ने मिष्टान मिठे पदार्थ बना के रखे सन, जंज वाले खाते सन, नाले बड़े खुश होंदे सन। विदा करे दे दात विसाला, अचरज पे नार तिय तह काला। पंजवें दिन जी बरात से विदा की। उस वे शब्द वरत्या जाता सी दाज, दहेज, जो कुछ असी प्यार दे वजों धी नूं दे के उत्थों विदा किया। पर वेख के पिंड वाले बड़े हैरान सन। भाई सिंह दे घर वाले आप जिथे बड़ी खुश सी, उत्थे हैरान भी बड़ी सी कि राती अपने हथी संगतां नूं छकाया थे तो कुछ भी नहीं सी, कि 2-4 बंदियां जोगा भी कुछ नहीं सी खाण ते ये 5 दिन रह के इन्नी बरात खा गई, पर घटिया फिर भी कुछ नहीं। सब मिल के तब इस बिद भाखे, गुरु पैज निज सिखण राखे। उदों सारे मिल के जिन्हों ने जान बुझ के भी संगत नूं इधर भेजा होगा, वो शरीके वाले भी कहते हैं कि नहीं सतगुरु जी धन ने। ये तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने सिख की आप ही इज्जत पत रखी है। अधिक नरण को शरदा पहे, भाव भगत जग मह प्रगटाई। ये वेख वेख के बहुत सारे होर लोगों की श्रद्धा गुरु चरणों के विच बनी। धन गुरु नानक साहिब की महिमा जगत विच होर प्रगट हुई। पुन एक दिन बैठे गुण खाने, करना लोचन बिखै महानी। कहते इस तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी करतारपुर साहिब की पावन धरती ते एक दिन बैठे ने। फिरना कहरा जोध दोए, जग्यासा तर आस। कहते भाई फिरना खैरा अते भाई जोध, ये दोवें सिख गुरु के संगत में आए ने, तो इन्हां दे अंदर एक जग्यासा है, एक आस लैके आए ने। आए परे पायन पदम, पुन बैठे प्रभु पास। ये दोवें सतगुरु धन गुरु नानक साहिब के चरणों में इन्होंने सिर रख के नमस्कार की, मत्था टेकिया, हाथ जोड़ के सतगुरु के सामने बैठ गए ने। हाथ बंद अरदास उचारे, हम आए अब शरण तुम्हारी। कहते भाई फिरना खैरा ते भाई जोध दोवें हाथ जोड़ के अरदास करते हैं, सतगुरु अज असीं तुहाडी शरण में आए हैं। निज उपदेश करो बखियाना, जिस प्रकार है वो हम कल्याना। सतगुरु जी कृपा करो साडे लिए भी कोई उपदेश बख्शो, कि जिहड़े उपदेश नूं असीं जीवन में कमा सकीए ते साडा कल्याण होवे। सिक्खे प्राप्त मन में होवै, बहुर न कबो काल बिगोवै। सतगुरु जी वो उपदेश बख्शो जिंदे नाल मन के अंदर भी सिक्खी पैदा होवे।
देखो सिक्खी का पहरावा पा लेना कुछ गल होर है। सिख तो आप सारे अपने आप को कह लेंगे, पर उस सिक्खी नूं कोई कमा लवे, वो फिर विरले सिख ने भाई मती दास जी वर्गे, भाई सती दास जी वर्गे, भाई दयाला जी वर्गे। सतगुरु जी किरपा करो इवें दी सिक्खी दी दात बख्शो कि मन दे विच भी सिक्खी पैदा हो। प्रभु भाग्यो मन नीवें जोए, तिनको सिक्खी प्राप्त होए। सतगुरु जी कहते हैं भाई सिखो, सिक्खे का सब तो पहला असूल ये है कि जिन्हां दे मन नीवें ने, ये सिक्खे की दात मिलती नीवियां नूं है। ते जेड़े उच्चे हो के हंकार दे विच तुरदे ने, हंकारियां नूं ते सिक्खी दा जेड़ा है वो कदे दात सिक्खी दी मिलदी नहीं। सेवा जो तुम पास ते सिखण की होए आए। सतगुरु कहते हैं जे सिक्खी की भावना लैके आए ना, सिक्खी की दात कि सिक्खी मन दे विच प्रगट होवे, ते फिर भाई सिखां की सेवा करिया करो। सिखां की सेवा दे विचों सिक्खी लभणी है। तो करिए हित कर हृदय, पग पखार मुख पाए। गुरु दे सिखां दे सत्कार दे नाल सेवा करो, उन्हां दे चरण धोवो, उन्हां नूं लंगर छकाओ, उन्हां दे हत्थ धवाओ, जथा जोग उन्हां दे जिन्नी हो सके सेवा करो। पिछले निशा करो इशनाना, सदा शब्द अभ्याख प्रमाना। और सिखां दी सेवा, ये संगत गुरु के सिखां दी सेवा खास करके ग्रंथी सिंघां दी, पाठी सिंघां दी आम गुरु के वजीर करके कर देने, और बेनती करा कि करनी भी चाहिए है। सतगुरु जी कृपा करन, बहुत सारे ऐसे ने कि जिन्हों ने किसी समय बहुत लगन दे नाल मेहनत करके कीर्तन भी सीखिया और बहुत रसीला कीर्तन किया भी, पर जदों ना कमेटियां वालों कुछ मिलिया, और शायद वो इस भावना करके आए सन कि इत्थे बड़ा रुपया पैसा बहुत है, ना संगतां वालों मिलिया, फिर ऐसे भी ने जिहड़े केस घटा के वो नचन गाउण विच पै गए क्योंकि उत्थे नोट बड़े ने। सतगुरु जी कृपा करन, बचा के रखण, पर संगतां नूं भी विशेष ध्यान रखना चाहिए है। और सतगुरु जी का हुक्म है भाई गुरु के सिखां की सेवा करो, जथा जोग करो। पिछले निशा करो इशनाना, ते सिख का अगला काम की है? पिछले निशा पैर रात रहिंदे अमृत वेले उठ के इशनान करे। सदा शब्द अभ्यास प्रमाना, ते शब्द जिहड़ा वो केवल ग्रंथी सिंघां नूं ना कह देवे कि असीं पैसे दे देंगे तुसीं पढ़ी जाओ। ये गुरु साहब ने बार बार समझाया है, ये सिख का कर्म है भाई शब्द का अभ्यास करना है, शब्द नूं पढ़ना है, उन्होंने विचारना है। मन नेवे सतसंगत जाए, गुर को शब्द सुनो हित लाए। फिर मन नीवा करके संगत विच जाए, संगत विच बैठ के गुरु के शब्द के विचार सुने, गुरु के शब्द का कीर्तन सुने। जानो वाहिगुरु को स्वामी, दास आपनो लखो सुखामी। बस उस वाहिगुरु नूं अपना मालक जानो, ते आप सदा ही अपने आप को अवगुण हारे ते उनके दास जानो। पर यह है औखा काम, क्योंकि असीं जिथे वेखने ये भी माड़ा, ये भी माड़ा, वो भी माड़ा, तो पूछे भाई चंगा कौन है? कहते चंगा तो मैं ही हाँ। पर सतगुरु की बाणी इस तरह नहीं सानू सिखाउंदी। भाई नज़र मारो किसी ना विच, किसी दे विच कोई ना कोई गुण तो होवेगा ही, तो जे झात मारेगा समझ पेगी कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, साडे नालों माड़ा कोई भी नहीं। हुण सतगुरु जी कहते हैं भाई दास जान के, अपने आप को अवगुणियारा जान के दास बन के रहे। गुरबाणी को मनन सो करना, जे चाहत हो भव को तरना। सतगुरु जी कहते हैं जे भव सागर नूं तरना ना भाई सिखो, फिर गुरबाणी नूं केवल पढ़ना ही नहीं, केवल सुनना ही नहीं, गुरबाणी को मनन सो करना, उन्होंने मनना भी है।
सिखे सिख सतगुरु ते तैसे की निकार। सिखी वही है जो सतगुरु तो सिक्ख्या नहीं तो उस तरह की फिर कार भी की। जन्म मरण छुट कष्ट ते तिनको पयो उधार। ते जिन्हों ने इस तरह गुरु की सिक्ख्या सुन के उन्होंने कमाया वो जन्म मरण तो पहलों भी छुटे, अज भी छुटते हैं तो छुटते रहेंगे। इस प्रकाश और नरण अनेकं कर उपदेश दियो सोब बेकं। कहते इस तरह सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने अनेकों उपदेश दिता, अनेकों का उपदेश दे के पढ़ा किया। ग्रंथ बढ़न ते बरने नाही मत अनुसार कशुक मैं प्राही। कवि संतोख सिंह जी अध्याय खत्म करते लिखते हैं गुरु के सिख बहुत आए, गुरु साहब ने बहुत ढंग दे नाल बहुत सारे उपदेश दिते, पर जे सारे लिखिए तो ग्रंथ बहुत वड्डा हो जाना सी। इस करके मत अनुसार थोड़े जे सिखां दा जिहड़ा वर्णन किया है इत्थे कविराज ने अध्याय भी खत्म किया। अगे गुरु साहब जी जिवें किरपा करनगे अगला अध्याय भी जिहड़ा है उनका सरलेख भी सिखां नूं उपदेश है, जिवें उपदेश देणगे वो आपां कल विचारांगे। होईयां फुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट रसना दे नाल हाजरी लवा लईए, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।